فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ اے آئی ایم آئی ایم کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اے آئی ایم آئی ایم کے نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے ریلوے نیلائم سکندرآباد کا دورہ کیا اور چیف آپریشنل مینیجر اور ڈی سی ایم حیدرآباد سے اجمیر سے عرس شریف کے لیے خصوصی ٹرینوں کے سلسلے میں ملاقات کی۔ اے آئی ایم آئی ایم کی درخواست پر اجمیر اسپیشل ٹرین کو منظوری دے دی گئی ہے جو 2024 میں شیڈول ہے۔ ان کو ابھی ہم چلا رہے ہیں، لیکن یہ اس ٹائم تک آپ کا یہ ختم، یہ آپ کا جب تک وہ ختم ہونے کے بعد آپ کا ٹھیک ہے، تو بولر کے ساتھ بھی ایبل ٹو ٹرائی ٹو ٹیک سم بیٹر کوچز۔ تلنگانہ میں 6 ضمانتوں کے وعدے کے ساتھ برسر اقتدار آنے والی کانگریس پارٹی کو یقین ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں تمام ضمانتوں کو پورا کرے گی۔ دوسری طرف کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ایسے وعدوں کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے۔ کرناٹک اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کے حالیہ بیانات سے اصل صورتحال واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم پیسے کہاں سے لائیں گے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے الیکشن کے دوران وعدے کیے تھے، کیا یہ سب کچھ کرنا ممکن ہے جو کہا جاتا ہے؟ کے ٹی آر نے اس پر طنز کسا ہے۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور سابق وزیر کے ٹی آر نے ایکس پلیٹ فارم پر لکھا کہ انہوں نے انتخابات میں عوام کو دھوکہ دیا ہے اور کانگریس اقتدار میں آئی ہے۔ کیا یہ بھی تلنگانہ کا مستقبل ہے؟ کیا بڑے اعلانات کرنے سے پہلے کم سے کم مطالعہ اور منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 2 تا 3 دنوں کے دوران تلنگانہ میں سردی کی لہر میں اضافہ کا امکان ہے کیونکہ مشرقی جنوب مشرق سے تلنگانہ میں سرد ہوائیں چل رہی ہے۔ اس کے زیر اثر کل ریاست میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے برخلاف تلنگانہ میں جاریہ سرما کے موسم کے دوران درجہ حرارت میں 1 یا 2 ڈگری کی گراوٹ ہوگی۔ متحدہ اور عادل آباد میں آنے والے دنوں میں اقل ترین درجہ حرارت 10 تا 12 ڈگری سیلسیس درج کیے جانے کا امکان ہے۔ عادل آباد، نظام آباد، نرمل، کمرم بھیم، جگتیال، منچوریال میں شدید سردی کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ بقیہ علاقوں میں درجہ حرارت 15 تا 20 ڈگری ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیر کے روز عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست میں نئے صنعتی زونز کا قیام کے لیے آؤٹر رنگ روڈ کے باہر اور ریجنل رنگ روڈ کے اندر 500 سے 1000 ایکڑ مناسب اراضیات کی نشاندہی کرے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تجویز پیش کی کہ یہ اراضیات ایئرپورٹس، قومی اور ریاستی شاہراہوں سے صرف 500 سے 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا کے ہمراہ ریاستی سکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے دوران اجلاس ریاست میں صنعتی ترقی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ دوران اجلاس وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کر دیا کہ صنعتوں کے قیام کے لیے حاصل کی جانے والی اراضیات بنجر ہونی چاہیے اور یہ اراضیات قابل کاشت نہیں ہونی چاہیے۔ زرعی اراضیات کو قطعی طور پر حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کسانوں کو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، آلودگی نہیں ہونی چاہیے، ترقی غیر مذکور ہونی چاہیے۔ انہوں نے عہدیداروں کی ہدایت دی کہ ریاست میں صنعتوں کے لیے مختص کردہ اراضیات صنعتوں کے لیے الاٹ کردہ اراضیات کے عدم استعمال کی تفصیلات پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ آلودگی نہ پھیلانے والی صنعتوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ شہر کے ناچارم، جیدی میٹلا، کاٹے دھن صنعتی علاقوں کے لیے متبادل انتظامات پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے بالا نگر کی آئی ڈی پی ایل اراضیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی اور عہدیداروں کو ان اراضیات کے موقع پر جامع رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مشرقی وسطی اور یورپی ممالک میں کمپنیوں کے قیام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے اس حوالے سے رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 28 دسمبر سے کانگریس کی یوم تاسیس کے موقع پر نئے راشن کارڈ، وظائف اور مکانات کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے رقمی امداد حاصل کرنے کی درخواستیں وصول کرنے کے سلسلے میں گرام سبھا منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کی اطلاع کانگریس کے سیاسی امور کمیٹی کے کنوینر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے اجلاس کے اختتام کے بعد دی۔ انہوں نے گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 28 دسمبر سے ہر گرام پنچایت میں گرام سبھا منعقد ہوگی اور اسی دن سے ریاست بھر میں کانگریس کی ضمانتوں سے متعلق درخواستیں بھی قبول کی جائیں گی۔
जिनमें महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को माहाना 2,500 रुपये की इमदाद, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और दीगर ज़मानतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में ही दरखास्तों का जायज़ा लेते हुए इस्तफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। बहुत जल्द इन तमाम स्कीमात के लिए गाइडलाइन भी जारी किए जाएंगे। తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ గారు రావడం, ఆమె ఒక ఉపన్యాసంతో తెలంగాణ ఇచ్చినాను, ఇలాంటి తెలంగాణ కాదు, నేను మీ యొక్క తెలంగాణకు కోరుకున్న కోరిక మేరకు ఈ తెలంగాణ పని చేస్తలేదు, నేను నిజమైన తెలంగాణ మీరు ఏ డ్రీమ్ చూసినారో దాన్ని అమలు చేయాలంటే కాంగ్రెస్కి ఒక అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పినందుకు ప్రజలు ఆకర్షాయి మరి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చినందుకు మరి ఇలా మా యునానిమస్గా తీర్మానం చేసి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి తెలంగాణలో లోక్సభలో పోటీ చేయాలని యునానిమస్ తీర్మానం చేసి ఈ యొక్క ఉత్తరం కూడా రాసి అక్కడ హైకమాండ్ ఖర్గే గారితో రిక్వెస్ట్తో సహా సోనియా గాంధీకి రిక్వెస్ట్ చేయబోతున్నాం, దయచేసి మీరు తెలంగాణలో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ పోటీ చేయండి. గతంలో కూడా శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు మెదక్ పార్లమెంట్ నుంచి పోటీ చేసినారు. అదే చరిత్ర మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి తెలంగాణ మీరు ఇచ్చిన తెలంగాణలో మీరు తెలంగాణ తల్లిగా ఇక్కడ పోటీ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. దయచేసి మా విజ్ఞప్తిని మీరు స్వీకరించాలని ఇక్కడికి రావాలని యునానిమస్గా పిఎస్సి కమిటీ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఈ డిస్కషన్స్లో మరి ముఖ్యంగా మీకు सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई छुट्टियां गुजारने पीर की शाम हैदराबाद पहुंची। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा सीताका और डी श्रीधर बाबू के अलावा रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन और दीगर ने मुर्मू का इस्तकबाल किया। सदर मुर्मू 5 दिनों तक सिकंदराबाद के बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निनाय में क़याम करेंगी। अपने क़याम के दौरान मुर्मू हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट की 100 साला तकारीब के एक साला जश्न के ग्रांड फाइनल प्रोग्राम जो मंगल को मुकर्रर है में शिरकत करेंगी। वो 20 दिसंबर को ज़िला यादादरी बुंगेर के बुदान पूचमपल्ली का दौरा करते हुए बाशिंदों से बातचीत करेंगी और 22 दिसंबर को राष्ट्रपति नीलामी में एट होम की मेज़बानी करेंगी, जिसमें वो सरगर्दा शख्सियात, माहिरीन तालीम और मुअज़्ज़ज़ शहरियान शिरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी MNCs में हज़ारों अरबी ग्रेजुएट्स फारिगीन की ज़रूरत है। यह इंकशाफ प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना सैयद जहांगीर निज़ामी साबिक डीन इफ्लू यूनिवर्सिटी ने किया। वो 17 दिसंबर की शाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम निज़ामिया कॉम्प्लेक्स हैदराबाद के इदारा अदब इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना के जानिब से मुनक़्क़दा आलमी यौम अरबी ज़बान कॉन्फ्रेंस 2023 से मुखातिब थे। मौलाना जहांगीर ने अपने खुतबे में कहा कि आज अहले जामियात अरबिया इस्लामिया ये कहने के मौक़िफ़ में है कि अगर कोई हिंदुस्तानी अरबी के साथ अंग्रेज़ी और दूसरी कोई ज़ुबान जान लेता है तो वो इंतहाई गैर मामूली याफ़ता के साथ यहाँ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बड़े एजाज़ के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है और गुजार भी रहे हैं। मौलाना फ़हीम अख्तर नदवी ने सदर शोबा इस्लामियात मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दूसरे सेशन की सदारत फरमाई। उन्होंने इस सेशन में पढ़े गए मकाले जात का जिक्र करते हुए कहा कि यह वक्त की अहम ज़रूरत है कि अरबी ज़ुबान और अदब और कुरान फहमी के लिए इस जैसे तकारीब का इनेकाद किया जाए। उन्होंने कहा कि अरबी ज़ुबान वाकई मुश्किल है लेकिन कुरान मजीद की ज़ुबान बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि अरबी बहुत वसी ज़ुबान है और इसके लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। एराब के ज़रिए माना और मफ़हूम बदल जाते हैं। उन्होंने उम्मत मुसलमा पर जोर दिया कि वो कुरान को समझे। कुरान फहमी के ज़रिए नमाज सही अदा की जा सकती है और इसमें खुशू खुजू पैदा करे। मौलाना फ़हीम अख्तर नदवी ने कहा कि अल्लाह ताला चाहता है कि उसका बंदा इखलास के साथ नमाज़ों की अदायगी करे और उसके अंदर रूहानी कैफियत पैदा हो। अरबी इतनी आनी चाहिए कि कम अज़ कम नमाज और दीगर अज़कार को समझ सकें और अल्लाह ताला से जो मांग रहे हैं उसका पता चले। मौलाना ने उलमा कराम और अरबीदार हज़रात से कहा कि आम अरबी के बजाय वो फसीह अरबी का इस्तेमाल करे। उन्होंने अरबी ज़ुबान से मुताल्लिक़ कही एक वसी और फसीह व बलीग़ ज़ुबान है, ये समुंदर की तरह है और समुंदर में जिस तरह मोतियों को ढूंढते हैं इसी तरह अरबी के तालिब इल्म अपने आप में काबिलियत पैदा करने के लिए इसकी फसाहत व बलागत के हुसूल के लिए कोशिश करें। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी,
ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे एक शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को अलर्ट रहने को, कोविड के मेयार को नाफिज करने और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वजारत के सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने पीर को तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों, प्रिंसिपल सेक्रेटरियों और सेहत के सेक्रेटरियों को लिखे गए ख़त में कहा है कि कोविड केरला समेत कई रियासतों में कोविड-19 के मामलात में इजाफे की खबरें मिली है। केरला में कोविड-19 की एक नई शक्ल JN1 सामने आई है। खत में कहा गया है कि मकामी इंतजामिया को कोविड-19 के इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र मुहतात रहने और मुतल्लिका दफ़ात पर अमल दरामद करे। आने वाले त्यौहारों के सीज़न के पेश नज़र मकामी इंतजामिया को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा ज़िली सतह पर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियाँ की जानी चाहिए। तमाम मुश्तबा अफराद का RT-PCR टेस्ट किया जाने और तमाम नमूने को टेस्ट किया जाना चाहिए। ख़त में कहा गया है कि JN1 का इलाज का तरीका कोविड-19 जैसा ही है। इसके लिए तमाम मुतल्लिका अद्वियात और मुतल्लिका आलात, इंसानी वसाइल की मुनासिब तैयारी की जानी चाहिए। इस हवाले से अवामुन्नास में बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाई जानी चाहिए। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर पीर 18 दिसंबर को सुर्खियों में थी। एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर कहा कि दाऊद को कराची, पाकिस्तान में भर्ती किया गया है, लेकिन इन दावों के पीछे की हकीकत किसी को नहीं मालूम। पाकिस्तानी अखबारात ने दाऊद के बारे में कोई ख़ास कवरेज नहीं किया। पाकिस्तान के चंद अखबारात सोशल मीडिया की खबरों के हवाले से दाऊद की खबर लिख रहे थे। न्यूज़ पोर्टल ABP पर शाया खबर के मुताबिक दरियास्ता इंकशाफ हुआ है कि दाऊद बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है। इंडिया टुडे की काबिल एतमाद इंटेलिजेंस जराये ने दाऊद के अस्पताल में दाखिल होने या मौत की खबरों की तरदीद की है। दाऊद के करीबी साथी छोटा शकील जहर खाने और अस्पताल में दाखिल होने की तरदीद की है। अंग्रेज़ी रोज़नामा टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए छोटा शकील ने कहा कि भाई 1000% फिट है। उन्होंने ये भी बताया कि दाऊद की मौत की अफवाहें गलत इदारों से फैलाई जाती है। दाऊद इब्राहिम का असल नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उनके वालिद शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। माली मजबूरियों की वजह से उसके वालिद ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद दाऊद जुराइम की दुनिया में आया। पहले उसने उस वक्त के डॉन हाजी मस्तान के साथ काम किया और बाद में उनसे अलहदगी इख्तियार करके दुबई से काम शुरू कर दिया। 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों में दाऊद का हाथ बताया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद अराजी की मिल्कियत तनाज़े केस में मंगल को अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रोहन रंजन अग्रवाल की बेंच ने मिल्कियत तनाज़े के मुकदमात को चैलेंज करने वाले अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मुकदमा मुल्क की दुबरी बिरादरियों को मुतासिर करता है। हम ट्रायल कोर्ट को 6 माह के अंदर केस का जल्द फैसले करने की हिदायत करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक मुकदमे कहे गए हैं कि ASI सर्वे के दूसरे मुकदमे भी दाखिल किया जाएगा और अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि किसी भी हिस्से का सर्वे ज़रूरी है तो अदालत उसे ASI की सर्वे की हिदायत दे सकती है। वाराणसी की अदालत 8 अप्रैल 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद का जामे सर्वे करने के हुक्म को भी अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी AIMC और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर करदा दरखास्तों में चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इससे कबल 8 दिसंबर को जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने दरखास्त गुजार और के वकला को सुनने के बाद फैसला महफूज रखा था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करने वाले AIMC ने वाराणसी की एक अदालत में दायर मुकदमे की बरकरारी को चैलेंज किया था, जिसमें हिंदू दरखास्त गुजारों ने उस जगह पर एक मंदिर की बहाली की मांग की थी जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई मंगल के रोज भी हंगामे के नजर आतिश हो गई और दोनों ऐवानों को दोबारा मुलतवी करना पड़ा। राज्यसभा और लोकसभा में सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही शोर और हंगामे आराई की वजह से उसे दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। काबिल ज़िक्र यह है कि राज्यसभा में अब सिर्फ चंद अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट रह गए हैं। 18 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया था। राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते अपोजिशन के 14 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया था।
इन समेत में इस इजलास में अब तक अपोजिशन के कुल 92 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया जा चुका है। मंगल को राज्यसभा में अपोजिशन के 4 अरकान पार्लियामेंट ने कायदा 267 के तहत चेयरमैन को बहस के लिए नोटिस दिया था। अरकान पार्लियामेंट की तरफ से बहस के लिए दिए गए ये तमाम नोटिस मुस्तरद कर दिए गए। ये अरकान पार्लियामेंट की सलामती पर बहस चाहते थे, लेकिन जब उनकी इजाज़त न मिली तो हंगामा शुरू हो गया और ईवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। पीर को राज्यसभा से मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट में कांग्रेस के लीडर केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आरजेडी के मनोज समेत 45 राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।